Hello everyone and namaste. Welcome to the International Fab Talks. Thank you for being a part of our journey. It's always a pleasure, a joy, and of course a privilege to have several young guests join us on the International Fab Talks. We've had guests from different age groups sharing the journey with us, wanting to create awareness, wanting us to understand life. It could be with regard to your finances, your family, fun, and it could also be about the environment, right? So dear friends, I'll not take much of your time. It's time to introduce our guest. He's joining us all the way from the lovely city Indore, located in Madhya Pradesh in India. So we have with us today none other than Deepak Kanodia, who's joining us all the way from Indore, Madhya Pradesh, India. Let's welcome sir and get to know what he's going to train us today on. What is it that he's going to share with us? Are we going to benefit from this session? If you're going to benefit from the session, we definitely have to thank him. But first, let's introduce our celebrity guest. He is none other than Deepak Kanodia, joining us all the way from Indore, Madhya Pradesh, India. Namaste ji and welcome to the session. Namaste. Thank you so much, sir, for taking out the time. Thank you for accepting the invitation. Invitation आपने स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद. आपका प्रोफाइल ब्रीफ में शेयर करेंगे और इसके बाद में स्टार्ट करेंगे. Yes. Thank you. So dear friends, we have with us, as I earlier mentioned, none other than Mr. Deepak. He's here with us. We're going to have an unfiltered conversation with regard to, let me make that clear, self-care tips or, self-care practices for professionals. When we need to take good care of ourselves as professionals, we need to follow certain tips and self-care methods to keep ourselves sane and not to suffer from burnout. So I'd like to add a little more to Sir's profile. He is a person connected with life coaching. He's been a great life coach, a mental wellness trainer. He focuses on mental health and a counselor, and his services spread across India, not only in Indore, Madhya Pradesh. Many of the people connect with Mr. Deepak for his services across India, and a few of them also could connect from various other countries with him through online mode. They have been doing it and they are still doing it. So that is how we got him online and requested him to share his journey here with us and to give us some kind of awareness on the International Fab Talks. Fab Talks is about awareness, learning from the commoners, learning from each and everyone who we come across our path. Now it's time to hand over the session to none other than Deepak Kanodia. Sir, the session is yours. Over to you to begin the session and teach us how to take care of ourselves as professionals. India and all our viewers, we all are here to just understand what is actually work and what is the work-life balance. So today our topic is self-care practices for professionals. Basically, what are professionals? The people who are working in the corporate, the people who are working at the vendors as a vendor, the people who are working as a shopkeeper, people who are working for the services of others, as well as the product sellers, the manufacturers, a lot of people, those who are working for people, and they are giving all of them, all of the resources, all of the things, all of the time resource as a human being for the service and for the production for others. So on that note, we start that are we doing the same efforts for maintaining our own self? When we are talking about our own self, then there is always in a society that if I am giving myself something, then that would be more than the family, that would be more than my own business, like business is baby. And we are not giving up to the mark to the baby. That was the guilt we create. And therefore, there is an immense need to understand that there is a lot of self-care needed for the people who are serving for other and making their life better. Excellent, sir. Thank you so much for sharing that. That was really nice to make us understand we are taking care of our businesses and our professions in the right way, but we are not taking care of our own selves. So we deserve certain practical tips on how to take care of ourselves as professionals. I really like this concept of yours. Much needed in today's world, in today's fast competition and corporate world. We need to focus on this, that is self-care for all professionals. Over to you, sir. So again, I'm just starting with a little quote that are we loving our own self? If we are producing, if we are serving for others, are we taking self-care of that production house for that person who is the main resource for all the businesses? If I am going to business in the morning, what is my thinking?
that I will produce some more things. I will give more services to the people around me. And what happens? For that only, I do a lot of things in which I messed up, because I need to not only work as an employee, but I need to work as a communication partner for others also, like my boss or my employees, or any role where I am fitting in. I would definitely want to talk with the clients to convert them, to get the business more, and therefore a lot of stress I'm creating daily in my life by business. And therefore what happens, that this creation is just making our own self a form of a person who is working towards others, and not taking any action for improving the source of that production, not taking any action for improving the service person that is affecting others' life. Suppose I am a healer, I am a counselor, I am a life coach, and I am giving some tips to others. And if I'm not applying those tips to my own self, if I'm not getting much more aware about my own self care, how can I produce others? How can I make them to up to the mark according to my wish? It is just depend on the source. It is a flow of energy which is creating a lot of changes in others, and therefore the source needed to be self-aware. The other thing what we are missing out, that we think that our family and our work is different, and therefore sometimes when we miss family, we do blunders in the business. And when we are with family, what happens? We are guilty for the business, and I'm not doing business right now. So is it the world we are working for? That is it the mission we are working for? The dreams we amalgamated when we were in the earlier ages, that my life will be happy after this, after that. Are we living that dream? Are we living that creativity? Are we living that enjoy? Are we living that fulfillment? No. Why? Because we are ignoring the most important person in the life, that is our own self. If we are professional, if we are the person who is a person a lot of people are depends on, I should take care of that first. I would give a simple example. Let us start with an aeroplane. When we are flying, and there is an announcement goes on that please tighten your seat belts first before your child. Why so? Because if we are balanced enough, then only we can take care of the balancing of our child. The same manner, can we do this for our own business? Can we start? No, it is not only about taking care of physical health or mental health or emotional health or anything. It is about everything we are looking into. It is about every aspect of life we are working into, whether it is emotional, whether it is physical, whether it is spiritual, whether it is financial, and whether it is anything by which we can contribute to the society by our own business. So it is taking care not only one thing, it is taking care for all, because we are the source of that habit. So again, I just want to include you, and I'm just giving one simple example, that if I am in a class and studying a subject, what happens? A teacher comes, start with one subject, and then it goes after 40 minutes or 30 minutes of period, and another teacher comes, and there are interaction with many teachers. Why it is so? Because there is a part of education which is saying that we have to take care of everything around us, not only science, not only maths, not only social science, also with the physical activities, also with the mental health. And we have to work on it. There are a lot of steps I'll tell you around. So if you have any question, you can ask. Sir, I really appreciate the way you've been sharing it, Mr. Deepak. What I'd like to bring to your notice is, like, there are people who have done justice to their business, but they have not done justice to their own selves. They have forgotten their selves. They have done justice to their family, to their business, but not to their selves.
And that is why we've seen a few businessmen committing suicide. Like they have money, they have a family, but they're not still happy. कहीं ना कहीं उन लोग मन में कहीं ना कहीं उनको अकेलापन महसूस होता है. तो we found many business people, entrepreneurs, I mean the big ones. Yes. I wouldn't want to name anybody, but we've been reading a lot of entrepreneurs and business people who have committed suicide due to loneliness. So I think if, according to you, if they take good care of themselves, love themselves the way they love their profession and their families, I think they can become great individuals, right? That's really nice. Very interesting, sir. Over to you. That is the most important thing. Your question is very much relevant to the modern era. Everyone is getting into the business. I'm sorry. Everyone is getting into the business, and this question is related to the modern era. Everyone is just taking care of the business. And business is what? Is the business gives us that immense pleasure? Are we doing the business? It is showing that we are not capable of doing that business. It is showing that we are somewhere lacking something. If I am good at cricket, what would happen? That I will love to play cricket. And if I'm not having any knowledge about cricket, when I'll go to pitch, what will happen? I'll get out. So in the same manner, in this life, we are having a lot of challenges in the businesses also. But first, what we have to do is that are we getting enough pleasure, enjoyment in the business, or we are creating tension, stress in the business? We are creating our own creation is that if I am doing something and it is my like immense dream, so I will play with that, and that playfulness will definitely make me much more aware about the challenges and will make me more available to go with the challenge. अगर मेरे सामने बहुत ज्यादा चैलेंज है तो मुझे ये करना है कि मैं उस चैलेंज को समझकर उस पर काम कर सकूं, न कि उस काम से घबरा जाऊं. फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, कभी कभार फैमिली डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, लीगल इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे कॉमन चीज पता है आपको क्या है? वो है खुद. हम हर चीज के लिए जब तैयार होकर निकलते हैं घर से, है ना, जरा सा कोई शो है ना, हम कोई तैयार होकर निकलते हैं घर से, हम कोई मूवी देखने जाना है तो हम पूरी तैयारी से थोड़ा पहले जाकर के टिकट लेकर के पहुंच जाते हैं. जब हम बिजनेस में जाते हैं, जब हम अपनी लाइफ में जाते हैं, तब ऐसी तैयारी क्यों नहीं रखते? अच्छा, दूसरी बात, हम फिल्म को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, मूवी को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, या हम अपने बिजनेस को, अपने वर्क को एंजॉय करने के लिए घर से निकलते हैं, या फिर देखते हैं कि एक और दिन है भाई, अब क्या करें, कैसे करेंगे, हाउ विल डू दैट, ये इतना सारा प्रेशर, इतना सारा काम कैसे होगा, ये इतना सारा फाइनेंशियल जितना डिस्प्यूट हो रहा है या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया किसी बिजनेस में, तो ये कैसे सॉल्व होगा? हर दिन हम ये क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए, और अपने इमोशंस को, अपने इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं बीट कर रहे हैं खुद ही. तो इस वजह से कई बार क्या होता है, किसी एक ऐसी हाइट पर पहुंचने पर, जब हम, आपने कहा ना कि अलोन रहता है व्यक्ति, अलोन क्यों रह रहा है? मुझे पता है कि लाइफ इज अ लॉन्ग लोनली प्रोसेस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोनली प्रोसेस है ये. इस लोनली प्रोसेस में हम बीच बीच में छोटे छोटे चंक्स निकाल सकते हैं जिसमें हम अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं. कहते हैं कि कुछ लोगों ने कुछ बात नहीं कही, छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो छोटे छोटे कर्ज के कारण सुसाइड किया हुआ है, और कई बार पब्लिक में जब ये बात पहुंचती है तो बोले ये इतना छोटा सा काम था यार, इसमें तो मैं हेल्प कर दूं. तो इसका मतलब ये है कि वो कभी शेयर ही नहीं करते. इसका मतलब ये है कि अभी वो प्लेटफॉर्म पर आकर कभी स्टार्ट ही नहीं करते. क्या वो पल भूल गए कि जब हम कहते थे ना कि हम फेल हो जाते हैं फिर से ट्राई करते, फेल हो जाते हैं फिर से ट्राई करते, वो एटीट्यूड कहाँ गया? वो थॉमस अल्वा एडिसन की बात कहाँ गई जो हमने कभी स्टूडेंट बन के सीखी थी कि मैंने 10,000 बार फेल होना सीखा है, तब जाकर ना ये बल्ब इन्वेंट किया है. तो हमको क्यों लगता है कि हम एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, या 10 बार फेल हो गए तो हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, हम फिर से स्टार्ट कर लेंगे. हाँ, इस प्रोसेस में हमको साथ लेकर चलने की जरूरत है,
उन लोगों को जिनको हमने कुछ हेल्प की होगी अपने बिजनेस से। अगर हमने केवल सेल्फ अल्टीरियर मोटिव लेकर के काम किया है, इसका मतलब केवल केवल इतना है कि हमने ये मान लिया है कि कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। आपके बिजनेस में, आपके, इवन हम यहाँ पर बैठे हैं, आपके और हमारे किसी भी काम में कई लोगों की बहुत सारी हेल्प है। तो हम फेल क्यों होंगे, और हम ऐसी जगह पर पहुंचकर जहां पर सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, वहां पर पहुंचकर इतने अकेले और इतने उदास क्यों हो जाएंगे। इसमें एक बात आती है कि मैं रेगुलर कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। रेगुलर कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब रेगुलर में कुछ डिपॉजिट नहीं कर पा रहा। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अम, कुछ ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो अगर हम वर्क के टाइम पे समझ लेंगे, वर्क करने से पहले समझ लेंगे, तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। बहुत कुछ ऐसा आसान हो जाएगा जिस डिपॉजिट से हम अपनी एनर्जी न सिर्फ सेव करेंगे, बल्कि हर दिन हमें ऐसा लगेगा कि बस आज ये बिजनेस में आए ना, यही जिंदगी है। आज हम ये घर पे आए ना, यही जिंदगी है। आज हम इसके साथ है ना, यही जिंदगी है। और उस हर पल को एंजॉय कर पाएंगे। तो डिपॉजिट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा कि इतना। Deepak, thank you very much. You shared that so well. What I want to bring to your notice, Mr. Deepak, is not only the business people or the entrepreneurs think of committing suicide or ending their life or become depressed. अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इतना वर्क प्रेशर, थोड़े लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। मुझे तो हैरानी होती है। आई थिंक बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर और ज्वाइनिंग दी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ इंडिया तो अच्छी बात है, तनख्वाह अच्छी मिलती है, इज्जत मिलता है। लेकिन मुझे हैरानी होती है जब कोई मर जाता है। दिस दे आर यंग पीपल, वो भी उम्र में बहुत कम है, उतना प्रेशर नहीं ले पाते, दे कमिट सुसाइड। सो इट्स वेरी वेरी सैड, दैट इज रियली वेरी सैड। सो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर दीपक? बिल्कुल, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि कोई भी काम मुझसे बड़ा नहीं है। और जिस तरह से मैं शिक्षा के जगत में गया था लर्निंग करने के लिए, आज जब मैं मुझे जॉब लगी है या मैं कहीं भी, मैं देखता हूँ बैंकिंग, आजकल आप समझ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर कितना व्यस्त है। हमको लगता है कि बैंकिंग में अब कोई जॉब बचा नहीं, नहीं, बहुत सारा काम है ना। बैंक आवर्स बहुत ज्यादा हो गए, भले ही हमारे लिए कम हो, लेकिन उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। या फिर अगर किसी आईएएस आईपीएस, जैसा आपने जिक्र किया, किसी ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे बहुत काम करना पड़ता है, रेलवेज हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे दिन रात एम्प्लॉय काम करते हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं। नॉट ओनली इन द बिगर लेवल, एट द लोअर लेवल ऑल्सो people get frustrated and they are leaving the jobs for their own sake, or sometimes they are leaving their life. What is the reason behind it? The reason behind it is the simple, that from the initial part I am not giving attention to those all points where I have to give. I'm missing something. जैसे जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मुझे सबसे पहला मेरा फोकस होता है कि मैं अच्छा काम करूं, मैं जॉब से नहीं मुझे बाहर करना चाहिए, और मुझे एक सैलरी अमाउंट मेरा इंक्रीज करना है। ये सारे पॉइंट जो होते हैं जब मैं जॉब पे जाता हूँ, ये सारे पॉइंट दिमाग में घूम रहे हो। लेकिन आप बताइए कि आप उस जगह पहुंचे कैसे। आपकी कोई एलिजिबिलिटी थी, क्राइटेरिया था, कोई एग्जाम क्रैक की थी। उस समय आपने कितना डिसिप्लिन लाइफ जिया था, याद है? जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, कितना टिप टॉप होकर के वहां पहुंचते थे। हर चीज पे ध्यान देते थे, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते थे। आईपीएस ऑफिसर बने तो फिजिकल हेल्थ इतना अच्छा कर लिया कि आपके डिसिप्लिन का लोग एग्जाम्पल देने लग गए। यानी आपने अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम किया, एक्सरसाइज की, कहीं ना कहीं मेडिटेशन या योगा किया, और अपने आप को फिट रखा। वो कहाँ चला गया आफ्टर जॉब? आपने उसको स्केल अप कर लिया। कैसे? आपने सैलरी को एनहांसमेंट मांग लिया कि अब बस स्टॉपिंग हियर। वहां से वो रेगुलर फिजिकल ध्यान देना बंद हो गया। तो मेरा जो पहला डिपॉजिट है वो फिजिकल डिपॉजिट है। आपकी बॉडी मूव ही नहीं कर रही है बैठे हैं घंटों तक, क्योंकि हम एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बहुत अच्छी गेमिंग एप्स बना रहे हैं। और पता चला एक बार मेडिकल टेस्ट में पता चलता है कि ऑलमोस्ट वी आर कवर्ड, गेटिंग इंश्योर्ड, बट स्टिल फिजिकल हेल्थ तो डाउन हो रही है ना।
तो उस समय हमको पता चलता है कि सर्वाइकल में दिक्कत है, स्पॉन्डोलाइटिस हो गया है, बहुत सारी तरह तरह की चीजें काम कर रही हैं। तो वो लगातार सिटिंग 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 एंड ईटिंग व्हाट, जो भी आ जाए खा लो, क्योंकि टाइम नहीं है ना। वो न्यूट्रिशन कहाँ गया, जो न्यूट्रिशन हमने पहले लिया था उस जॉब को क्रैक करने पे। याद कीजिए जब हम कोई परीक्षा की तैयारी करते थे, पढ़ाई की तैयारी करते थे, आपके पापा मम्मी पेरेंट जो है वो बादाम गला के रखते थे रात में, ताकि सवेरे उठकर खाना है, एक न्यूट्रिशन छोटा सा हो जाए पर हो जाए। वो कहाँ गया? तो एक भी न्यूट्रिशियस फूड दिन भर में नहीं लिया, काम सारा कार्बोहाइड्रेट कर रहा है, जो बचा हुआ है वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ाना। पर फिर भी इस बात का कौन ध्यान रखेगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी पीठ पे आपको पैट करना पड़ेगा। आज अपन ने ये अच्छा काम किया, छोटा छोटा काम कीजिए और पैट कीजिए कि आज मैंने ये न्यूट्रिशन वाला जो भोजन है ना वो खाया। छोड़ दीजिए, एक फ्रूट खाया, डेली वन फ्रूट, इतना तो कर ही सकते हैं। वो स्पेस ले लेगा आपके उस जंक फूड की जो आप खा रहे हो। तो वो उसने स्पेस ली, आपके थॉट्स बदले, आप उस स्पेस को कम कर सकते हो, क्योंकि खाना खाने का समय तो आप सब दोगे, 2 दिन में एक बार तो सोओगे। स्लीपिंग को कितना टाइम देना चाहिए? अगर स्लीपिंग टाइम कम आपको मिल रहा है तो प्लीज गेट एग्जांपल फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर एंड लॉट ऑफ पीपल, दोज हु आर गिविंग ओनली 4 आवर्स स्लीप फॉर अ डे, हाउ दे आर मैनेजिंग। ऐसा क्या राज है? कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं कि हम छोटा सा मेडिटेशन आवर रखते हैं अपने लिए, जैसे हम कम स्लीप में ज्यादा इफेक्टिव स्लीप ले पाते। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत समय लग रहा है किसी भी चीज को करने में। अच्छा छोड़िए, ज्यादा समय नहीं है ना, तो 2 मिनट्स आप कोई 7 हैबिट्स डेवलप कर लीजिए और वो 7 हैबिट्स को 2 मिनट्स डेली दीजिए। कितने मिनट मांगे मैंने आपसे? 14-15 मिनट्स। इतने मिनट अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज काम करना छोड़। इतना भी मिनट अगर आपको काम में नहीं मिल रहा है, आई एम सॉरी, इतना मिल रहा है, 14-15 मिनट्स अगर आपके पास में है, नहीं जा सकते आप सुबह वॉक, तो 2 मिनट के लिए आप टेरेस पे घूम सकते हैं। नहीं सेल्फ टॉक कर पा रहे, 2 मिनट के लिए अपने आप के कोई भी जर्नलिंग कर सकते हैं अपने लिए। नहीं थैंक दे पा रहे रात को, कुछ नहीं, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को थैंक दे पा रहे। नहीं बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं खा पा रहे, कोई भी एक छोटा सा, एक छोटा वर्कर भी एक कोई भी एक सीड तो ले ही सकता है डेली, ग्राउंडनट सीड। वो क्यों नहीं है? बिकॉज हमने ऐसा मान रखा है कि नहीं 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 नहीं, हमें बहुत तेज भागना है, हमें बहुत तेज कहीं पहुंचना है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा कि एक बाइक है जो बहुत तेज चलकर जा रही है, उसे कहीं पहुंचना है, उसका पेट्रोल खत्म हो चुका है, लेकिन वो रेस चल रही है अभी। बताइए क्या होगा? क्या वो पहुंच पाएगा? नहीं है, आपका फ्यूल नहीं है आपके पास। इसी तरह अगर आप माइंड पे ध्यान नहीं देते, मेडिटेशन नहीं करते, चलिए मत कीजिए, आप स्लीप करते हैं उसके पहले थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा अनवाइंड कर सकते हैं। पहली बात तो वाइंडिंग ही क्योंकि आप पूरे ऑफिस में बैठ करके गॉसिप्स देखता हूँ मैं, कई बार ऑफिस में गॉसिप्स होती हैं और हम तरह तरह की बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसी ने कुछ किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कहा है, हमको पता होता है, तो वो गॉसिप्स पता नहीं दिन भर इतना वाइंडिंग कर देती है कि आप अनवाइंडिंग करने का तो टाइम ही नहीं है रात में। क्यों इन्वॉल्व होते हैं ऐसी बात? उस समय हम अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, उस समय अपनी छोटी सी लिटिल वॉक कर सकते हैं, उस समय अपनी वो पुरानी कविता लिख सकते हैं, कोई गाना सुन सकते हैं। Why we are giving so much time to all the crap which is not needed at all? Okay, so even in the government system there are some hours which are for the government employees and they are reserved. मैं मानता हूँ आप बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉई है, मत उठाइए 1 घंटे का फायदा, 15 मिनट अपने लिए निकाल, है ना। आई लव बैंक वर्कर्स समटाइम, गवर्नमेंट बैंक वर्कर्स, दे फुल्ली एंजॉय दैट 1 आवर। नहीं है ये 1 घंटा नहीं है हमारे लिए, that should be reflected in all of us। देखिए आपका जो हार्ट है ना, वो कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स? नहीं, गलत।
आप देखेंगे 72 टाइम्स वो धड़कने के बाद रेस्ट भी लेता है, पता है कितनी बार? 72 टाइम्स। और देखो उसकी जर्नी कितनी लंबी है ना? तो इतनी बार रेस्ट लेता है तभी वो इतना लंबा चलता है। हम कितनी बार रेस्ट लेते हैं पूरे काम के दौरान? बस ऐसा छोटा सा अगर हमने यूं भी कर लिया तो हमको लगता है अरे नहीं, बॉस देख लेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। बॉस इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, व्हाई डू यू केयर? Please, 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 please take care of yourself. You will enjoy that money, whatever you will earn. You will enjoy your party with your family. वीक में एक बार वीकेंड पे अगर कभी अपनी फैमिली के साथ समय बिता लिया तो हमको लगता है कि बस यही है वर्क लाइफ बैलेंस। नहीं, एवरी डे इज अ वर्क लाइफ बैलेंस। महीने भर में हम मुंबई से इंदौर आ गए या कहीं बाहर हम काम करते हैं और हमको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, यही वर्क लाइफ बैलेंस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। डेली डेली 15 मिनट 5 मिनट अपनी फैमिली के लिए निकाल सकते हैं। नहीं हो रहा है तो फोन पे बात कर सकते हैं, उतना भी नहीं करते। वेरी सॉरी, हम वो सब करना भूल जाते हैं जब हम कुछ पा लेते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बस यही वो समय था जब आराम करेंगे, क्योंकि सोचा यही था। वहां पहुंच के अपनी सारी हैबिट छोड़ देते हैं, अच्छी खासी हैबिट जितनी भी इमोशनल चीजें छोड़ देते हैं। आपके दोस्त क्यों नहीं है? आपको लगता है आपका दोस्त बहुत आगे बढ़ गया है, वो आपसे बात नहीं करेगा, उसको क्यों फोन लगाना? आपको लगता है आपका दोस्त बहुत पीछे रह गया है, उससे क्या ही बात करें? जिंदगी में ऐसे वक्त पर आपके अच्छे, सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल फ्रेंड काम आते हैं, जब आपको शेयर करना चाहिए। भूलिए मत, आप भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है। वो भी चाहता होगा आपका दोस्त कि कभी आप उसे फोन कर दो, जैसे आप वेट कर रहे हैं ना उसके फोन का, भी आपके फोन का वेट कर। ऑफिस में फ्री टाइम पे गॉसिप नहीं कीजिए, दोस्त बनाइए। हैव अ लॉन्ग टीम, इतनी बड़ी टीम हो कि आपको छींक भी आए तो फोन लाकर बोले बेटा ठीक तो है ना। तो दैट वाज अ थिंग। आप क्यों लगे पड़े हैं कि नहीं आपको कॉर्पोरेट में फ्रेंड्स बनाने हैं? वो कोई काम नहीं आने वाले, क्योंकि वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो आपके बड़े कॉर्पोरेट लेवल के फ्रेंड्स बनाने वाले हैं। मेरे बड़े कॉन्टेक्ट हैं, मेरे विधायक जी से कॉन्टेक्ट है, आई एम सॉरी, बट वो कॉन्टेक्ट कोई काम नहीं आने वाले आप। हाँ, सेल्फी खींचने के लिए अच्छा है, हालांकि वो अपना खुद का काम नहीं कर रहे हैं, है ना? वो भी किसी फ्रेंड की तलाश में है जो उनको और आगे लेके जाए। आई एम सॉरी, आपके फ्रेंड वही हैं जो आपकी बात थोड़ी देर के लिए सुन सके। और पता है इसके कारण क्या हो रहा है? हमने एआई को अपना फ्रेंड बना लिया, उससे बातें कर रहे हैं। जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता, आपके राज वो लेके रख रहा है, पता नहीं कब यूज करेगा। जियो सिम फ्री आई थी, आई एम सॉरी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट कुछ सिम फ्री आई थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो व्यापार कितना आगे बढ़ा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्री इज नॉट ऑलवेज फ्री, इट इज वेरी कॉस्टली। अच्छे दोस्त, अच्छी दोस्ती ये कंपेनियनशिप है। आप इन्वेस्ट कीजिए, हफ्ते भर में 4 फोन नहीं लगा सकते आप अपने दोस्तों को? आपके 2000 5000 कॉन्टेक्ट की लिस्ट है, फेसबुक पे 20,000 फ्रेंड्स हैं, आई एम सॉरी कितने होते हैं मुझे नहीं पता, बट 20,000 फ्रेंड्स हैं, तो भी आपके काम नहीं आ रहे, तो सॉरी आपके फ्रेंड नहीं है ना? तो प्लीज आपका रेशो, आपका नेटवर्क कैसे बढ़ेगा? अच्छा पता है, आप जब ऐसा करेंगे ना तो यही नेटवर्क आपको बिजनेस में हेल्प करेगा, कोई आइडिया दे देगा, आपका कस्टमर बन जाएगा, आपको सही सही फीडबैक देगा। फीडबैक के लिए मरते ना हम, ना जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं फीडबैक के लिए, गूगल को देते हैं, इसको देते हैं, उसको देते हैं, वो सही बता देगा कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, आपके वर्क लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, आपकी अपनी फैमिली से रिश्ते अच्छे क्यों नहीं है, आपकी कहाँ गलती है, ये कौन बताएगा? है ना? तो एआई तो आपको सही करार देगा, आप सही हो बस। नहीं अच्छा इसने ऐसा आपके साथ किया, नहीं नहीं नहीं, आप बहुत सही हो, आप बहुत अच्छे हो, टू स्वीट।
ओके, फाइंड फ्रेंड्स। ओके, तो ये चीज है आपके, ये जो नेटवर्किंग है अगर आप डेली करेंगे, डेली डिपॉजिट करेंगे। अच्छा, कंट्रीब्यूट कितनी बार किया आपने? आप जितना कमाते हैं उसमें से 10% बोलते हैं कि अब कंट्रीब्यूट करना चाहिए, छोड़ो 1% करते हैं। सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं करते, हमको लगता है गवर्नमेंट का काम है। टैक्स बचाते हैं, गवर्नमेंट का काम है। और पता नहीं क्या क्या करते हैं, आई एम सॉरी। ये सारा वाइंडिंग इकट्ठा होकर के शाम को आपको क्वेश्चन करता है कि आप सही थे क्या? आप वही व्यक्ति हो जो बड़े बड़े सपने लेकर के और बड़े बड़े प्रोमिस लेकर के अपने एक लाइफ में आगे चले थे, वो सब कहाँ जाएगा? तो आपकी लाइफ में आपको वहीं पर खड़ा रखेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। इफ यू हैव एनी ऑफ द थिंग जो कि पास्ट में आपने किया था, वो रेग्रेट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। फिर आप करवाते रहो हीलिंग, तरह तरह के सेमिनार वेबिनार अटेंड करते रहो, बस अपने आप को बस उससे रियलाइज करते रहो, हाँ हाँ ये कर्मा हीलिंग हो गया, ये ऐसा हो गया। सॉरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों पे, अपने घर पे, अपने काम पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये सारा करना है, बहुत कुछ नहीं करना है। मैंने कहा 15 मिनट, 2-2 मिनट हर चीज को आप अगर आपने दे दिए पर डे, और ये रेगुलर है ना, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो डेफिनेटली काम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन, आप पता नहीं कौन कौन सी चीजों से जुड़ जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं 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 ये स्पिरिचुअल पर्सन से जुड़ गए हम तो, अब तो बिल्कुल हम वी आर सेल्फ सिद्धा। सॉरी, एवरी सोल हैज इट्स ओन जर्नी और एवरी सोल इज हैज इट्स ओन पार्ट। तो आप किसी दूसरे के रास्ते पे चल के कहीं नहीं पहुंच सकते, आपको अपनी यात्रा खुद करनी, क्योंकि आपकी मंजिल पे दूसरा नहीं जाएगा। तो स्पिरिचुअल डिपॉजिट्स हैं, मैंने कहीं आपको डिपॉजिट बताया, फिजिकल डिपॉजिट बताया आपको, मैंने मेंटल डिपॉजिट बताया आपको, है ना। इसी तरह मैंने आपको कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट बताया, रिलेशनशिप डिपॉजिट बताया। रिलेशनशिप आपको लगता है कि बस मैं, मेरी वाइफ, मेरे आसपास के लोग, मम्मी पापा या जिनको भी आप मानते हैं, ये रिलेशनशिप यही नहीं है। आपकी पूरी सोसाइटी बैठी है, नहीं 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 सर मेरे समाज में तो सपोर्टिंग लोग नहीं है, आप हैं। और बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको, कोई पूरे इंडिया भर को, आई एम सॉरी ना मैडम, मेरा परिचय दे रहे थे पैन इंडिया में मैं काम करता हूँ, नहीं नहीं मैं छोटे से इंडिया में काम करता हूँ। मैं अभी इंडिया को तो पैन इंडिया में छू ही नहीं पाया। मैंने कुछ 2-4 लोग डेली मिलते हैं, 5-10 लोग डेली मिलते हैं मुझे, मैं उनकी लाइफ को अफेक्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, आई डोंट नो। तो ये 4-5 लोग से शुरू करिए, बहुत बड़ा नहीं करना है। है ना? मैं नहीं मानता कि आप किसी रिश्तेदार को बहुत बड़ा कुछ गिफ्ट देंगे तो ही कुछ होगा, छोटा सा चॉकलेट काम करता है ना। तो व्हाट वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट विदाउट योर बर्थडे, विदाउट योर स्पेशल डे? व्हाट वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू वर इनटू योर पेरेंट्स लैप और बोले मम्मा आज तो मुझे सोना है? What was the last time when you hug your own self? What was the last time when you saw yourself in the mirror and bola bas aa gaya, yes this is the time? So that is the self care. It is not only about the exercising, going to gym, joining a meditation camp, nothing. It's really very simple. Keep it in simple and sweet. Kiss yourself. तो ये एक छोटा सा पार्ट है जिस पे हम काम कर सकते हैं। और ये जो चीजें हैं, ये जो डिपॉजिट्स हैं, इवन मेरी बात भी हो रही थी एंड्रिया मैम से, सो आई कैन गिव यू इन द राइटिंग, डोंट थिंक दैट कि ओके आपको सारी चीजें लिखनी है। मैं आपको एक मेरी छोटी सी बुक है 12 पेज, वो आपको मैं एज अ फ्री गिफ्ट दे रहा हूँ। लिंक आपको शायद मीडिया पे मिल जाएगी, सो यू विल गेट दैट लिंक, कनेक्ट विद अस ऑल्सो फ्रॉम दैट लिंक एंड कैन गेट अ लॉट ऑफ योर लाइफ। लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए आए हो, हर पल को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। तो ये बिजनेस और ये वर्क की बात नहीं है, ये हर चीज की बात है। आप हैं तो बिजनेस है,
आप है तो घर परिवार है, आप है तो दोस्त हैं, आप है तो सोसाइटी है। यू आर द पर्सन। अपने आप को आईने में देख करके ये ऐसे उंगली करना है, यू, यस यू कैन डू इट। और कैन वैन भी छोड़ो, अरे यू आर डूइंग इट, दैट्स ओके। So that will definitely, I think, so that it may make a little or no difference in your life, but I still want that you can continue with whatever you are doing and enjoy that. मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके साथ में यहाँ पर ये वाली बात खत्म करूंगा कि अगर मान लो अभी इसी वक्त आपके पैरों के नीचे की जमीन खसक जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो ये कौन सा टेंशन था जो उस समय महसूस होगा? कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, आप चले गए। लाइफ में जब कुछ नहीं होता है तो फिर कौन सा टेंशन भी कौन सा होगा? देयर इज नो टेंशन, धरती खत्म होगी, अब क्या कर लेंगे? 2012 में हम सुन रहे थे ना, धरती खत्म हो जाएगी। कोरोना में हमने फील किया है ना, कोविड में हमने बहुत फील किया कि कभी खत्म हो गए तो क्या। कुछ भी नहीं, नथिंग, नो टेंशन, नो वरीज, नो स्ट्रेस, नो वर्कलोड, नथिंग। वर्कलोड लेना हम खुद तैयार करते हैं। हमने वर्क के प्लेस पे गए और जहां हमने बोल दिया इतना सारा काम, गए वहां बोला बस यार ये तो मैं कर सकता, ये तो मैं ट्राई कर सकता, ये तो कर लूंगा। और बीच बीच में ब्रेक्स भी लूंगा, एंजॉय भी करूंगा, अपनी कुर्सी पर उठ करके यस करूंगा। दैट्स द पावर वेयर यू विल वर्क फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर एवरीवन इन दिस लाइफ, एंड यू कैन मेक द एग्जाम्पल फॉर अदर्स, आई नो। Excellent, excellent, Mr. Deepak. It is really, really very, very interesting. I like the way you've shared all of that. You put in a lot of effort. What I've understood, I've taken one important point from you is explore life. Yes, and enjoy life, enjoy every second, enjoy it for yourself, for your family, and for your team members, or maybe your business, or for the society at large. Thank you very much. And you've given us various deposits, right? That's really nice. Thank you very much. I would love you to repeat all the deposits once again in line. That is after this question that I ask you now, after this question. Now, sir, what I'd like to bring to your notice is there is a lot of job loss. Now, suppose you're not a business person, not everybody can become a business person. Not every employee can start up a business, right? Like it's like vice versa. Like you can't be always a business person, or a business person cannot be an employee, to put it in the right way. Now, because of the job loss, थोड़े लोग क्या है एकदम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। सर, आप एक लाइफ कोच है, एक काउंसलर भी हैं, तो क्या किस तरह की मदद आप कर पाएंगे? इफ यू कैनॉट गेट अ जॉब, स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन। लाइक डोंट टेक योर लाइफ। वो जॉब ही आपको सस्टेन नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकता। आई मीन, लेट मी पुट दैट राइट, वो जॉब ही आपका जिंदगी नहीं है। आप कुछ और भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग बिना कॉर्पोरेट लेवल में काम करे अपना जिंदगी, बड़े बड़े महल बना लिए अपने घर अपने लिए, दे हैव बिल्ट ब्यूटीफुल हाउसेस एंड स्टार्टेड ग्रेट प्रोजेक्ट्स। सो डोंट गिव अप योर लाइफ, क्योंकि आजकल के दौर में लॉट्स ऑफ जॉब लॉस इंडिया में और वर्ल्ड वाइड हो रही है। तो इसके बारे में आप किस तरह की मदद कर पाएंगे हमारे सभी दर्शकों के लिए? इसका जवाब दो बातों में है। एक, जो मैंने आपको कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कहा था, कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट किसके लिए है? जब मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ सोसाइटी से, तो क्या मैं आई एम गिविंग इट बैक? एंड बिलीव मी एंड्रिया, if I give 10% of my income to the social cause, सोशल कॉज का मेरा मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े पोस्टर्स पे या बड़े बड़े फोटोज पे आपका नाम आए, नथिंग। इफ आई एम नॉट गिविंग इवन माई टैक्स, then I am creating a society which is hopeless, not only jobless, क्योंकि उनके पास तो कोई होप ही नहीं बचा, कोई हेल्प करने वाला ही नहीं। तो जब तक हम पे कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं आएगा, तब तक हम ऐसे लोगों की हेल्प नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, जॉबलेस एक ऐसी चीज है जिसको आप और एंजॉय कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि कैसी बात कर रहे हैं, जॉबलेस को आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूं, जब आप जॉब कर रहे होते हैं, लर्न व्हाइल यू अर्न, नॉट ओनली फॉर द न्यू कमर्स। जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं
तो आपकी स्किल्स कहाँ गई, वो पुरानी जो आप कभी करते थे? छोड़ दीजिए, चलिए वो अर्निंग स्किल नहीं रही होंगी, गाना गाते हैं आप? डेली आप घर पे बैठ करके गाना गा सकते हैं लोगों के लिए। मैं आपको बताऊं एक ऐसी जॉब जो कि बहुत रुपए देती है, केवल कैंसर पेशेंट को ऑनलाइन सर्व करना। जॉबलेस नहीं है, स्किल लेस है वर्ल्ड में बहुत सारी। अब देखिए स्किल कम होता जा रहा है क्योंकि हम स्किलिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारा टाइम ऑनलाइन लगा रहे हैं, पता नहीं क्या अनवेरिफाइड और पता नहीं क्या क्या सीखने में। क्या हम अपनी ही बात पे लौट सकते हैं? क्या मेरे पास में कौन कौन सी क्वालिटी थी? क्या मैं गाने में अच्छा हूँ? क्या मैं लिखने में अच्छा हूँ? मैं लोगों की हेल्प करने में अच्छा हूँ? और क्या हुआ अगर आपने किसी एक महीना, आपके पास जब जॉब नहीं थी तो आपने लोगों की जाके हेल्प कर दी, क्या हुआ? पर हम नहीं करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ आपको, जिससे आपको ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कभी ये कहानी सुनी जाएगी तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल दे गेट लेसन फ्रॉम दिस। देयर वाज अ पर्सन, अ फेमस पर्सन, वो बहुत अच्छे सिंगर थे एंड ही गॉट लॉट ऑफ स्टेज शोज। ऑस्ट्रिया के पास में ही उनका जो था, अमेरिका के बॉर्डर पे उनका अ, जगह थी जहाँ पे वो शोज करते थे और बहुत पैसे अर्न करते थे। दो ब्रदर थे और दो ब्रदर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इनका शो कराऊँ, हम लोग इनका शो कराते हैं और उससे जो भी पैसा अर्न होगा, वो हम अपनी पढ़ाई में लगाते हैं। दैट वाज़ द थीम। तो उन्होंने एक बड़ा शो ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत सारे टिकट्स बेचे। वो पर्सन भी आए, लेकिन हुआ क्या कि टिकट के समय पे कुछ ऐसी शायद नेचुरल कुछ डिज़ास्टर या कुछ ऐसा रहा कि टिकट सेल कम रही। और इस वजह से वो जो प्रोग्राम रहा बहुत अच्छा इवेंट रहा, मतलब उस सोसाइटी का बहुत अच्छा इवेंट रहा, बट इनको फ़ायदा नहीं हो पाया। इनको कहीं न कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम रही। तो वहाँ पर हुआ ये कि इस कारण से उनको लॉस हो गया इस पूरे इवेंट से। तो जब ये बात वो सिंगर को पता चली कि इनको लॉस हुआ है और मैं अगर इनसे पैसे लेता हूँ, तो ये बिल्कुल ही गड्ढे में चले जाएँगे। तो उन्होंने जाते वक़्त उनसे कहा कि ये पैसे आप ही रख लो, हमें नहीं चाहिए और मुझे बस आने-जाने का आप जो किराया दे सकते हो वो दे दीजिए। इस बात को करीबन गुज़रे 20 से 30 साल हो गए, मैं बहुत कन्फर्म नहीं हूँ कितने साल हुए, पर ये 20 से 30 साल हुए। और ऑस्ट्रिया नाम की जगह है पास में ही, वहाँ पर कोई नेचुरल कैलेमिटी आई और नेचुरल कैलेमिटी आने के बाद में वहाँ के जो उपराष्ट्रपति थे या जो भी उनके फूड मिनिस्टर रहे होंगे, उन्होंने अमेरिका से हेल्प माँगी। और अमेरिका ऐसा कंट्री है जो किसी भी आई एम सॉरी, किसी भी वजह से ही किसी की हेल्प कर पाता है ना? तो वहाँ कोई वजह नहीं थी। बट फिर भी पता नहीं क्या हुआ कि वो फूड मिनिस्टर्स ने इनको बहुत सारा ग्रांट कर दिया फूड, राशनिंग कर दिया, बहुत सारा उनको पहुँचा दिया। तो ऑस्ट्रिया में ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे बहुत सारा फ्लड जो था उसके कारण जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो खत्म हो गई। तो वहाँ के जो उपराष्ट्रपति थे या जो भी फूड मिनिस्टर थे, वो उनको थैंक यू करने के लिए आए। अब थैंक यू करने के लिए आए तो वो उनसे जाकर मिले जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उन्होंने कहा कि थैंक्स अ लॉट, आपने मेरी कंट्री को बचा लिया। पता है उन्होंने क्या रिप्लाई किया? सर यू नो समवेयर यू हेल्प्ड अस इन आवर स्टडीज व्हेन यू वर ग्रेट सिंगर एंड ऑन दैट डे वी हैड अरे दैट वाज़ अ थिंग। समझिए आप कंट्रीब्यूशन कहाँ पे क्या रिजल्ट दे जाएगा पता नहीं। व्हाई वी आर नॉट गिविंग टू द सोसाइटी बैक व्हाट वी आर अर्निंग फॉर। लेकिन नहीं, हमारे पास इतना है ना? तो यही करप्शन और ये सारी चीज़ें जो होती है, हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं आजकल कि ज़्यादा बड़ा बनना है, ज़्यादा पैसे कमाना है, ज़्यादा अच्छी लाइफ़स्टाइल जीनी है, वो सब कुछ करना है, वो सब कुछ अफ़ोर्ड करना है जो हम नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं उनको एक ऐसी दिशा में ले जा रही है जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं और अच्छा जॉब छोड़ भी बहुत जल्दी से रहे हैं, इसलिए कंपनी का नुकसान हो रहा है। कंपनी नुकसान में है तो वो भी फिर उनसे बदला ले रही है, पूरी बहुत बड़ा स्विच कर रही है वो, एआई को रख ली है उसकी उनकी जगह पे, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन लर्न व्हाइल यू अर्न, ये इससे और काम हो सकता है। आप स्किल सीखते रहिए, नए-नए एडवांसमेंट जो आ रहे हैं उनको सीखते रहिए, अपने आप को स्किल अप करिए। मैंने वही कहा था शुरुआत में कि एक्सपायरी डेट आपकी होनी चाहिए।
आपके वर्किंग के तरीके की, आपके लर्निंग के तरीके की अब एडवांसमेंट आ गया है। ऑनलाइन आपको प्रेजेंस बनानी है एजुकेटर्स को, तो उनको सीखना पड़ेगा। चेंज तो है, तो हमें अपडेट तो होना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं होंगे तो जॉबलेसेस का शिकार हम होंगे। हमें वो सारा काम आना चाहिए जो कि हो सकता है हमारे डोमेन में नहीं है और हमारा इंटरेस्ट बहुत, तो कहीं ना कहीं वो सारे काम, वो सारी चीजें, एटलीस्ट हमको कुछ लर्निंग पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लर्निंग पे इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहाँ बहुत सारे कोर्सेज फ्री में चल रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेलिंग दैट। तो वो कहाँ है लोग? वो लोग जॉबलेस नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं किसी जॉब पे डिपेंडेंट, लोग बोल सकता हूँ कि वो पर्टिकुलर जॉब पे डिपेंडेंट है। तो वो उन्होंने कोई नया स्किल नहीं सीखा, अपने आप में नया इम्प्रूवमेंट नहीं किया और वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया होगा, सॉरी, बट वो एक लॉन्ग कंट्रीब्यूशन की बात होती है जो पूरे देश, पूरे समाज और हर किसी को समझना पड़ेगा कि हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। देन ओनली वी कैन गो फॉर इट। जब मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो जॉबलेस या होपलेस है, तो मैं सबसे पहले उसको उसकी खूबियां याद दिलाता हूँ जब उसने स्टार्ट किया था। और वेरी 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 इफेक्टिव मेथड होती है, जब वो खूबी याद करता है, उस पर काम करता है, तो थोड़ा थोड़ा काम करता है तो उसके कॉन्टेक्ट बनते हैं और वही कॉन्टेक्ट उसको जॉब दिलाते हैं। उस समय के लिए थोड़ा पेशेंस तो रखना है जब जॉब नहीं है आपके पास में। पर आपके लिए ग्लोबल वर्ल्ड खुला हुआ है आजकल जॉब के लिए। ऑन साइट जॉब अवेलेबल है, रिमोट जॉब अवेलेबल है। यू स्टार्टेड विद इट। अगर स्किल्स की कमी है तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। हमसे भी जुड़ सकते हैं, स्किल्स के लिए हम गाइड कर सकते हैं। और मैडम, मैंने तो सुना है आप बहुत अच्छे काउंसलर हैं एंड ऐसे आपके पास लोगों को आना चाहिए और कहीं ना कहीं वो ऐसे आप जैसे लोगों से भी प्रेरणा पा करके आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली ये जो पार्ट है ये हम लोग अदा कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर यू पीपल, दोज हु आर होपलेस, कम टू अस। Yes, Mr. Deepak, thank you very much. You shared that very well. So, dear friends, if you would love to connect with Mr. Deepak Kanodia, you can connect with him. We'll share his details in the description when we share this video. No matter what you are facing, you could connect with him. He will definitely guide you in the right way. You can book an appointment with him. He is focused on life coaching and a mental health counselor. And of course, he connects with you on the right topics which you want to discuss, and it's very confidential. If I'm not mistaken, he's very very confidential with his work, and he has been doing a great lot of good work on many platforms, be it online or offline. And today he's been doing a wonderful job of sharing all of it and has been inspiring us in the right way. We've not had anyone talking about this on the International Fab Talks till date. So he's been giving us a lot of important content today to focus on and not to lose hope. And we really thank him for all the wonderful contributions that he was speaking about. We'd request him to share it once again with all of us to keep that in mind. Sir, towards the end, I'd like you to share all the contributions, as you said, like if you can just put them all in order and share that so that we can just keep that in our mind. All right. फर्स्ट ऑफ ऑल, whatever the deposits I am saying, वो आपको कैसे सुनना है? सबसे पहले अपने आप को हग करना है, एक टाइट हग। लव योरसेल्फ, नंबर वन। नंबर वन इज फिजिकल कंट्रीब्यूशन या फिजिकल डिपॉजिट्स। फिजिकल डिपॉजिट डेली करें, 2 मिनट आप एक्सरसाइज कर लें, 2 मिनट हाथ पैर थोड़ा मूव कर लें, है ना, इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और नंबर टू, उसी फिजिकल डिपॉजिट में न्यूट्रिशन। तो आप न्यूट्रिशन कोई भी एक पार्ट पकड़ लें, कोई भी एक चीज जो है आप महीने भर के लिए लाकर रखें एंड टेक इट डेली, दैट्स ओके। ये बहुत सिंपल है। नंबर टू डिपॉजिट है जिसको हम माइंड डिपॉजिट बोलते हैं। तो माइंड डिपॉजिट के लिए आप पहला तो काम कर सकते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग बहुत अच्छा सोर्स है, या जो जर्नलिंग नहीं कर पा रहा है वो सेल्फ टॉक कर ले। और दूसरा जो पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई भी प्रकार का, हजारों तरह के मेडिटेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, है ना। इंडिया में अगर आप भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के पास अपने खुद के बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। नंबर थ्री बात करें अगर हम, तो एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जिसपे हमको ध्यान देना चाहिए और वो है हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पे आप डेली कुछ करें। मैं तो बोलता हूँ जो जिन लोगों के रिलेशन खराब है अपने घर पे या किसी से भी, वो डेली एक छोटा सा रिलेशनशिप कंट्रीब्यूशन या डिपॉजिट डेली करें। घर जाकर के अपने घर की सफाई कर सकते हैं, दैट्स ओके। ओके, जो भी डिपॉजिट कर सकते हैं वो डेली आप करें। एक डेली जहां से भी आपके रिश्ते खराब होते हैं, दोस्तों से, परिवार से, कलीग से, आप उनकी डेली एक हेल्प करें विदाउट एनी डिमांड, ठीक है।
तो ये वाला जो एक रिलेशनशिप डिपॉजिट हो गया जिसमें आपको डेली काम करना है। दूसरा रिलेशनशिप डिपॉजिट है, यू कैन आस्क फॉर द हेल्प, आप हेल्प के लिए भी बोले तो भी ये रिलेशनशिप डिपॉजिट ही कहलाएगा। अगला जो डिपॉजिट है वो है फाइनेंशियल डिपॉजिट। आप जो भी काम कर रहे हैं बेहतर करिए, अपने आप को, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप को ज्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति बनाइए। तो फाइनेंशियल डिपॉजिट में केवल अर्निंग करना जरूरी नहीं है, सर्विस दीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी सर्विस अगर आपने 10x नहीं दी है तो आपका क्लाइंट चला जाएगा। प्लीज नोट दिस कि आपका क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है, जो भी आपका प्रोडक्शन है या जो भी है उसमें 10x वैल्यू दीजिए। 100 रुपए ले रहे हैं तो 1000 रुपए की उसको सर्विस मिलनी चाहिए, तब जाकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका क्लाइंट आपसे हमेशा स्टिक रहेगा। नंबर 2 है एक्सपेंशन। आप अपने एक्सपेंशन प्लान बनाइए, वहीं तक मत टिके रहिए। जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें जो भी पार्ट टाइम या जो भी आपको टाइम मिलता है वहां से लर्निंग कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए अदर करियर्स में भी, और बहुत सारे काम करिए, है ना, जो भी आपको पसंद है। अगला डिपॉजिट जो है वो है आपका कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट। जो भी आप कमाते हैं उसका 10% कम से कम, है ना, कहीं ऐसे रिलीजियस कल्चर्स में भी 10% जो है वो कहीं ना कहीं डोनेट करते हैं। तो प्लीज अगर आप 10% नहीं कर सकते तो 1% पर सैलरी या पर पेमेंट आप किसी को दान कर दीजिए, किसी के लिए दे दीजिए, किसी के लिए रख लीजिए, किसी के लिए डिपॉजिट कर लीजिए। और हाँ, 10% अपने लिए भी सेव करना है। तो जब आप 10% दे रहे हैं इसका मतलब 10% अपने लिए भी सेव करना है। तो अगर आप 10% अपनी इनकम का सेव करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको उस समय काम आएगा जब आप जॉबलेस होंगे, होपलेस होंगे, या फिर आपके कोई कैलामिटी या फिजिकल या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो आपके पास में एक इमरजेंसी फंड हमेशा रहेगा। या फिर बिजनेस शुरू करना है तो वो 10% आप अपने पास रखिए, डिपॉजिट रखिए, वो आपका फ्लूइड में हो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट में हो, या आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार। फिर अगला है जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमने कहा कि कंट्रीब्यूशन करना है, तो अगला है स्पिरिचुअल डिपॉजिट। स्पिरिचुअल डिपॉजिट से पहले मैं आपको बताऊं, लर्निंग डिपॉजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ ना कुछ लर्न करते रहिए, छोड़िए आप ज्यादा लर्न करना, अपने बच्चों की किताबें पढ़िए, उसमें मेरे हिसाब से अपडेटेड नॉलेज है जो हमने नहीं लिया। अच्छा, उससे बच्चे का होमवर्क भी हो जाएगा, आपको भी नॉलेज मिलेगा, एक कनेक्शन और एक बॉन्ड बन जाएगा बच्चों के साथ में। आप कभी भी उससे पूछ सकते हैं और वो आपको बताएंगे, बच्चों से, दोस्तों से, भाई, कोई आपका स्पाउस होगा, स्पाउस नहीं है तो कोई फ्रेंड होगा, और अगर कोई भी नहीं है ना तो घर पे रखा हुआ एक पत्थर भी काम आ सकता है, आप उससे शेयर कर सकते हैं, है ना, आप उससे डेली आप उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि एआई स्टार्ट करो, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, उससे बात करिए, उससे आप शेयर कीजिए, उसको केयर कीजिए, है ना, दैट्स ओके। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें लर्निंग डिपॉजिट है, जिसमें आप लर्न करिए, और लर्न करने के बाद में है स्पिरिचुअल डिपॉजिट। लर्निंग के साथ साथ में स्पिरिचुअल डिपॉजिट, जो भी आप धर्म मानते हैं, जो भी प्रथा पंथ मानते हैं, जिस भी तरह की आपकी पूजा पाठ पद्धति है उसमें अपना डिवोशन दीजिए, और अपना स्पिरिट जो है उसको हाई कीजिए, उसका अपने स्पिरिट को वहीं तक मत सीमित कीजिए। कई बार कुछ लोग बहुत सीमित हो जाते हैं, मेरा ये धर्म है यही होना, या इस तरह की बातों में पड़ जाते हैं। प्लीज, स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होता है ना वो रिलीजियस नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक। और वो रिलीजियस के कारण वो परेशान भी नहीं होता कि अरे मेरा रिलीजियस ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्लीज, ये जियो पॉलिटिक्स जो जितने भी चैनल चलने लगे हैं आजकल, हम बहुत देखते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब बड़ी सी बड़ी स्ट्रेटेजीज हैं जो हम नहीं समझ पाएंगे, हम उसका शिकार हो रहे हैं। और ये बड़े प्लेयर जो हैं, ऑनलाइन प्लेयर जो हैं, वो उसका खूब यूज कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आप अपने आप को इनसे इंटैक्ट, मतलब अलग से रखिए, इंटैक्ट मत रखिए, उनसे दूर रखिए, और स्पिरिचुअलिज्म में आप बिलीव कीजिए, आप अपनी स्पिरिट को आगे बढ़ाइए, एंड डेफिनेटली आप लोगों का भला कर सकते हैं, तो उनका हृदय भी चेंज कर सकते हैं। अच्छे बुरे जितने भी इंसान हैं, उनका आपने हार्ट चेंज कर दिया तो पूरी सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी, और वो एक अच्छी सोसाइटी के रूप में डेवलप हो जाएगी। तो ये सारे डिपॉजिट्स हैं। अगर आपको ये डिपॉजिट्स नहीं भी, अगर आपको अभी एकदम समझ नहीं आया या लिख नहीं पाए, तो यू कैन हैव माय बुक एज अ, आई एम गिफ्टिंग दिस टू ऑल द subscriber of the international fab talks, and I definitely think that it will help you. Excellent, sir. Super. I really enjoyed the session. It was really very, very interesting. Thank you for every single word that you've shared. You shared it really from your heart. अपने दिल से शेयर किया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है. That's really nice. Without any sort of negativity or any sort of expectation, sir agreed to share his time.
wholeheartedly, and he's also like agreed to share the link of the book where we can download and we can use it for a personal purpose. And he has shared the various kinds of deposits which we can concentrate on and transform our journey as a professional, or maybe as a homemaker also we can use it, because it's really good not only for professionals. Sir, professionals के लिए ही नहीं है, सभी के लिए इस्तेमाल हो सकती है ये पूरे जो टिप्स आपने दिया है, खासकर Exactly. प्रोफेशनल्स के लिए, बट इवन नॉर्मल पीपल, इफ यू आर नॉन प्रोफेशनल ऑल्सो, Everyone everyone will, can yeah, apply this. yes, Everyone can apply this. Really. excellent sir, that's really nice. Before we sum up the session, आप और कुछ शेयर करना चाहेंगे? You can share. बस इतना शेयर करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को संभालिए और बच्चों के दोस्त से ज्यादा बनिए। कहीं ना कहीं आपकी जो नई पीढ़ी है वो बड़े प्रोफेशनल बनेंगे, आपके बड़े सपने हैं कि वो बहुत अच्छा करें, तो प्लीज वो कहाँ पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उस समय में थोड़ा समय आप खुद दे दीजिए। किसी के भरोसे मत रहिए, किसी केयर टेकर के भरोसे मत रहिए। अपना समय होता है अपने जो बच्चों को आपने दिया है, और यही भविष्य में आगे जाके बड़े प्रोफेशनल्स बनेंगे। कहीं ये भटक ना जाए, बस इनको संभालें। आप तो अपना कंट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं, और जहाँ भी जो भी हेल्प लगती है प्रोफेशनल से लेने में जरा भी नहीं कतराना है। किसी भी प्रोफेशनल हो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जाए उसके पास, कोई अब ऐसे वर्ल्ड में आप बिल्कुल हिचके नहीं जाइए, कोई कुछ भी कहे, उनसे हेल्प लीजिए प्रोफेशनल से और आगे बढ़िए। दिस इज माय मैसेज। Thank you, Mr. Deepak. That's really very nice. Thank you so much for that lovely message towards the end. अंत करने से पहले ये सेशन और एक छोटी सी क्वेश्चन आपसे पूछनी थी, घमंड को कैसे उतारें? क्योंकि थोड़े से लोग बहुत इगोइस्टिकल रहते हैं, बहुत ईगो रहता है उनमें, तो वो घमंड कैसे होता है? बिकॉज व्हेन आई कनेक्ट विद यू मिस्टर दीपक, यू आर अ पर्सन विदाउट एनी ईगो, यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन, सच्चे दिल के। हम लोग को when we connect we come to understand who is a genuine person and all of that. So what you have to share with regard to people who have a lot of ego हिंदी में क्या कहते हैं, घमंड, is it? हाँ, राइट। सो अपने एक्सपीरियंसेस से या विजडम से कैन यू शेयर समथिंग लाइक हाउ इसको उतारना कैसा? समझो मुझ में खुद घमंड है या ईगो फीलिंग है, मैं कम कैसे करूं उसको? देखिए, आप पहाड़ों पे घूमने जाइए, आपको मालूम पड़ेगा आप कितने छोटे हैं। आप भीड़ में चले जाइए किसी उत्सव में, जैसे हमारे इंदौर में रंग पंचमी का उत्सव होता है, वहां सारे लोग कलर में होते हैं, और इवन एवरी रिलीजन पीपल का। तो वहां पर ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, ये कितनी सारी पब्लिक है, 1-2 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। तो ऐसी जगह चले जाइए जहां पर आप छोटे हो जाए, आपको खुद ब खुद गमन खत्म हो जाए। अपने अपने लैपटॉप पे गूगल अर्थ निकाल लीजिए, या अपना एक मैप निकाल लीजिए इंडिया का, उसमें देखिए आप कहाँ हैं, अपने आप घमंड खत्म हो। और तो और, आप जब भी अपने वर्क प्लेस पे जाएं, तो अपने जब जूते या अगर कभी बाहर उतारने की प्रथा आपके यहाँ है, या अगर कभी नहीं तो रेनकोट उतारने की प्रथा हो, जो भी है, तो आप उसके साथ ही एक इनविजिबल रूप में अपना घमंड जो है ना, ईगो, आप जो भी हो, वो बाहर निकालते हैं। आप अपने आप से बोलिए आप कौन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया, वो सब आप इकट्ठा कर लें और लिख लें एक जगह पे, उस कागज को जला दें। रात को सोने से पहले पूछ लें आपके पास क्या क्या है, और उसको सबको साइड में एक डिब्बे में रख के सो जाए। ये घमंड हमारा मन करता है। इसमें खैर स्पिरिचुअल में चला जाऊंगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में पता करें। तो जब आप इसमें जाएंगे कि आप मन के लेवल पे हैं, बुद्धि के लेवल पे अहंकार है आपका, चित्त के लेवल पे है, या फिर अहंकार आपका स्वयं बलशाली है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपका ये जो घमंड है ना, ये एक बहुत छोटी सी चीज है। अच्छा, ऐसे लोगों से जब आप मिले तो प्लीज 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 उनको मत सुधारिए, प्लीज उनके घमंड का कारण जानिए, उससे लर्निंग कर लीजिए, उससे लर्निंग ले लीजिए कि ये घमंड मुझ में नहीं होना चाहिए। और आपको पता है अच्छा लगेगा, वरना क्या होगा, उस इंसान के बारे में बुरा मानते रहेंगे कि अरे वो बहुत घमंडी है। वो घमंडी नहीं है, हमको उसका घमंड पता चल गया है ना। तो अगर हमको पता चल गया तो उसका बुरा मानना छोड़े,
उसको उसी समय पे माफ करने की तो बाद में बात आती है, उसका बुरा ही क्यों मानना? पहले मैं बुरा मानूं फिर मैं माफ करूं, तो वो ईगो हो सकता है कोई उसका एक पर्सनल इशू हो, डोंट थिंक। कभी कभी किसी का पर्सनल इशू हमको ईगो के रूप में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये हमको, जैसे हम बोलते हैं, मैं स्पेशल एजुकेटर भी हूँ, तो हम कहते हैं कहते हैं बच्चों को टैग नहीं करना चाहिए। who we are to tag any person for ego, for anyone, for anything, any reason? अगर हमने टैग कर दिया ना तो पता है वो कभी ठीक नहीं होता। सोसाइटी टैग करने लगती है, वो ईगो टेस्ट है, वो फलाना है, वो, तो टैग नहीं लगाना है किसी पे भी। आप उस व्यक्ति को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करो। मैंने लाइफ में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरे कुछ कोलीग जो है उनको बहुत ईगो था, ये था वो था, पर मैंने उनको बहुत ह्यूमनिस्टिक वे में ट्रीट किया। ऐसा बिलीव करने दिया उनको कि मैं उनका बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि उनके अंदर ईगो है। आपको पता है क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, नॉट ओनली विद मी, विद अदर्स टू। पता है ऐसे लोगों को अक्सर लोग समझने वाले नहीं मिलते, इसलिए उनके अंदर कोई ना कोई मेंटल इलनेस और मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। केवल और केवल अगर आपको किसी और का घमंड गिराना है तो प्लीज उसके घमंड को गिराइए मत, उसको, उस व्यक्ति को सपोर्ट कीजिए, जेन्युइनली सपोर्ट कीजिए, गलत चीजों में नहीं, अच्छे इंटेंशन में आप उसको सपोर्ट कीजिए। आपको देखेंगे कि वो घमंडी इंसान जिसको आप घमंडी मानते थे वो नहीं रहा, ही चेंज। अपना खुद का घमंड तो आप आईने में देख करके ठीक कर सकते हैं। अपना खुद का घमंड किसी भी, आप फ्यूनरल या आप किसी फायर के सामने खड़े हो जाइए, है ना? देखिए सामने चिता को जलते हुए, देखिए कि आप ही जल रहे हैं, या फिर किसी का फ्यूनरल हो रहा है, आप ही इसमें दफन हो रहे हैं। इतना बस इमेजिन कर लीजिए, आपका सारा घमंड खत्म हो जाएगा। Yes, Mr. Deepak, thank you very much for the session today. Thank you so much. आप एक अच्छा इंसान है और I wish that many people connect with you for all the good that you're doing. That's really nice. You have a wonderful heart. You have a good thought process and you've collected a lot of wisdom. ज्ञान आपके पास है और एक्सपीरियंस के साथ आप बात कर रहे हैं आज इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आनी है और इस मंच पर और भी शेयर करनी है। Thank you, Andrea, for giving so much, so playful platform, and I believe that this will create a lot of difference in viewers and subscribers. Thank you so much, sir. Thank you so much for the good wishes. Thank you. Stay blessed and stay connected. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you. Yes. So, dear friends, we've had a wonderful experience. I had a learning experience with none other than Deepak Kanodia. He is joining us all the way from Indore, Madhya Pradesh. Let me put that right. He has been joining us all the way from Indore, Madhya Pradesh, India. A beautiful soul, a pure soul, a genuine one. At that, with no ego issues and with no negativities, filled with lots of positivity. You should have such people in your life to be someone like him, to be the better versions of yourselves. You should be with those people who connect you with yourself, to make you understand that you have to love yourself, respect yourself, and the people around you. With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. Please do share this video. If you ever learned anything from it, if you've learned at least a little from Mr. Deepak, do share it with others and follow what he has instructed, the various deposits that he's been sharing about and what we can contribute to ourselves and to the society is all about today's session. How a professional could be really safe and sound and take care of himself and, of course, his family and his work environment. Don't forget to like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Stay connected, stay blessed. Keep smiling. Thank you, sir.